hello. Yeah, it is right. You want to see this company in 2022, 2023, so like. Good evening. Match number 83, Palani Tuskers will be locking horns with Aravali Arrows. Both of them are on the 6th and the 7th points of the points table. A warm welcome, good evening, welcome back on Fan Code. Match number 83, Palani Tuskers, who haven't won even a match in the booster round, will be locking horns with Aravali Arrows, who just won a match in this booster round. So let's get back to Harshit, who will be waiting for the teams to be entered onto the match. Over to you, Harshit. या दोनों ही टीमें यहां पर एक हार के सशक्त प्रदर्शन से परेशान होकर जीत ढूंढ रही हैं। तो आइए सबसे पहले उस टीम को बुलाएंगे जिनका कोहराम मचा था सर्वाइवल 1 और सर्वाइवल 2 में। क्या बूस्टर राउंड में इस मैच में पहली प्राप्त कर पाएंगी वो विक्ट्री? बुलाने जा रहे हैं द टीम ऑफ टस्कर्स, पालानी
After yesterday's win performance, will Aravali be seen in their best game? Here we are inviting Aravali Arrows. Yeah, match 83 is all set to rule the match here. Both the teams, they are looking for a consistent performance in the booster round. Palni Tuskers and Aravali Arrows. The referees are marching in. So they are the key persons on the match to give the verdict on time. And this is the starting seven of Palni Tuskers here. Jay Surya Nagarajan, who has been a phenomenal raider raiding from both the sides, and Ram Kumar will be supporting him along with Stuart Singh. In the cupboards, we have Ayanathan and also Manikandan on the left cover. On the right corner, we have Purushottaman, and left corner is Ajay Mutaya. And Mukesh Kannan, Viduthalai, and Tamil Rasan, Naveen, and Purushottaman. Will they get a chance to get onto the mat if they have a substitution round? जी राधिका, बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे इन सभी खिलाड़ियों को थोड़ा सा मौका मिलेगा ये जरूर आपको आते हुए नजर आएंगे। बट मुकेश कन्नन को आज शुरुआती साथ में नहीं रखा गया है। राम कुमार को यहां पर अंदर बुलाया गया है। अरावली एरोज की बात करते हैं, राजेंद्र भाकर अभी लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पर नजर आ रहे हैं। क्या आज प्रॉपर लेफ्ट कॉर्नर खेलेंगे, इन पे हम बहुत सारी बात करेंगे। रोहित बेनीवाल, प्रेम बड़ू, ब्रजपाल सिंह गौड़, चेतन चौधरी, साहिल बागड़ा और अंकित जाट यहाँ पर ये पोजीशंस पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। हरिओम चौधरी, प्रदीप सिंह, रोहित पंचोली, देव गुजर और नवप्रीत सिंह। नवप्रीत सिंह बहुत दिनों से खेल नहीं रहे राधिका। नवप्रीत सिंह अच्छे रेडर हैं और रेड में जरूर अरावली एरोज बहुत लैग कर रहा है। पिछले मैच में तो सिर्फ वहां पर 14 पॉइंट्स कुल मिलाकर टीम को मिले थे, पर टॉप 3 रेडर्स में आज संस्कार मिश्रा को सिर्फ एक बोनस पॉइंट मिला है, उसके अलावा कुछ नहीं राधिका। Absolutely, but then he's been consistent, just one match here and there, but then he's been taking the lead raider position for the squad. Top 3 defenders here we see is Lokesh Gosalia still sticking on to the first spot with 56 tackle, and Ankit Jat with 52 and Rajendra Baka with 42. So 2 of them will be shining on the mat now, Harshit. जी आज ये दोनों नजर आएंगे और राजेंद्र भाकर से आप अपना शानदार खेल का प्रदर्शन देखना चाहते हैं। और राधिका शायद हम दोनों ही वहां पर कॉम्बॉक्स में थे पिछले अरावली वाले मैच में, जहां पर राजेंद्र भाकर कवर वहां पर खेल रहे थे। और चलिए अब बात करते हैं, राम कुमार आज यहाँ पर टीम में मौजूद हुए। जयसूर्या नागराजन भी होंगे। चेतन चौधरी ने टॉस जीता है, अरावली एरोज के पक्ष में गिरा है और टॉस जीतकर लेफ्ट हैंड साइड की कोर्ट पर वो नजर आएंगे। तो पहली रेड या तो जयसूर्या नागराजन या फिर राम कुमार लगाएंगे राधिका। I think it should be Jayasuriya because he is very calm and composed. So he knows this is the raider we are talking about, Jayasuriya Nagarajan. 13 matches, 121 rate points, 84.6 is the rate strike rate. That speaks big volumes about this raider. और इनका 6 और 7 में, जब 6 और 7 का हाउस होता है तब इनकी और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं और भी ज्यादा एफिशिएंट इनका प्रदर्शन हो जाता है। बट आज एफओएसएन प्रदर्शन इस खिलाड़ी को दिखाना पड़ेगा। अंकित जाट 19 मुकाबलों में यहाँ पर 52 टैकल पॉइंट्स है और आज जयसूर्या नागराजन बनाम अंकित जाट डाइव्स बहुत अच्छा करते हैं राधिका। हो सकता है कि इनकी डाइव जयसूर्या नागराजन पर क्या आज भारी पड़े, बट इन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाना बहुत जरूरी है एज ए डिफेंडर। Absolutely, that's what we have seen it missing yesterday, but then today is a new day, new game, and Palni Tuskers so far, let's see their journey. 17 matches played, 11 wins, 3 losses, 3 ties. 64% is the win strike rate, but they haven't got best of the booster round. जी हाँ, पलनी टस्कर्स बूस्टर राउंड थोड़ा सा अपोजिट वहां पर गया है। सर्वाइवल 1 सर्वाइवल 2 में तो इनके लिए बड़ी हार आई ही नहीं थी और यहाँ पर वो जीत नहीं आ रही है। तो कुछ टाई आए हैं, कुछ हार आई है। पिछले 5 मैच राधिका, पिछले 4 मैचेस तो ऐसे गए हैं जिसे भुला देने लायक रहे हैं पूरे। उससे पहले एक सर्वाइवल 2 में वहां पर जीत प्राप्त की थी, पर आज के अपने 5वें मैच में बूस्टर राउंड में जीत प्राप्त करेंगी, ये भी देखना अहम होगा। जयसूर्या नागराजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और मैं इंतजार कर रहा हूं कब वो प्रश्न आएगा राधिका। तो ये प्रश्न मैं पढ़ देता हूं जिसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। ब्रजपाल सिंह गौड़ हैज स्कोर्ड ओनली 8 points in the last 3 games, being the team's best raider and the 5th best raider of YK Summer Edition. Why are other raiders in Aravali give more chances to rate than him? बहुत अच्छा प्रश्न है राधिका, अभिनंदन ने पूछा है, आप इसका उत्तर दीजिए। Absolutely, they need to rotate. That was the right question. You have given, ample opportunities. You've been
inconsistent in the last 3 matches. That means that there is a scope for new players to step in his place. यार राधिका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, और हम इस प्रश्न का उत्तर कोशिश करेंगे कि थ्रू आउट द मैच लगातार देते रहें। बताइए रावली एरोज की बात करते हैं, 20 मुकाबले 7 जीत उन्होंने प्राप्त की, 12 हार वहां पर आई है इनके लिए, एक टाई भी वहां पर खेला है, विन प्रतिशत 35 की है। और एक अच्छा प्रश्न था कि क्यों ब्रजपाल सिंह गौड़ को वहां पर रोटेशन जरूर कराया जा रहा है, बट राधिका शुरू में जैसे वो रेड लगाते हैं ना, अगर वो पकड़े जाते हैं तो उस पूरे मैच में वो रेड ज्यादा लगाते नहीं है। और रावली के लिए इसी के चलते पिछले 5 मैच की फॉर्म में सिर्फ एक जीत आई है। That's what, initial momentum is what drives that raider. In that case, do not send him in the initial phases. Send him only after the team sets in. Once the team gets a better score or they are in contact with the other team, then only you can initiate that raider. और एक और अच्छा प्रश्न है यहाँ पर, has the coach change in Palani affected their team's performance in the booster round, or is it Sanjeevi's absence as he was the leader and main raider? Can Palani get their first win in the booster round today? मेरा आंसर जो तीसरा प्रश्न है उसके लिए हाँ है। It is both of them. Sanjeevi is a big name, and once he is in the match, it gives lot more confidence in the team as well. And also getting accompanied to the new coach, his strategies, his frame of mind would be a little difficult, but then I'm sure they will set back soon. And I'm sure they're facing Aravali Arrows. I think this is the day that they should get back. या तो चलिए अब सीधा चलते हैं काउंटडाउन की तरफ, उसके बाद बहुत सारे प्रश्नों के बहुत सारे उत्तर निकालेंगे हम इस मैच से। ओके, सो मैच नंबर 83 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पलनी टस्कर्स बना हुआ रावली एरोज, और यहाँ पर हमारे साथ एम्पायर 2 मौजूद थी, उनका हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे हमारी लेडी रेफरी, और कोशिश करेंगे एक बार वो जर्सी वापस वो ऑन फ्रेम नजर आए। राधिका, क्या आप नेम पढ़ पाई थी? क्योंकि मुझे लगा कि मैं जब तक स्क्रीन पर देखता शायद वो नाम जा चुका था। No, I couldn't actually. And this is the right raider. And we speak about, maybe we thought, Jayasuri Nagarajan would come, but this is Stuart Singh who stepped in. या स्टुअर्ट सिंह से पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर भरोसा जताया गया है टीम की तरफ से, हमने कल भी इन्हें देखा, अब साहिल बागड़ा यहाँ पर होंगे। और राधिका, वो जो प्रश्न था ना रावली एरोज ये पूछा गया था कि ब्रजपाल सिंह गौड़ टीम के बेस्ट रेडर हैं और युवा कबड्डी सीरीज समर एडिशन के टॉप 5 रेडर्स में इनका नाम आता है, तो क्यों उनसे ज्यादा रेड्स नहीं कराई जा रही है? साहिल बागड़ा के अंदर आना जरूर एक ये वजह है, और ब्रजपाल सिंह गौड़ भी थोड़े से डाउन इन कॉन्फिडेंस नजर आए, जैसा कि स्टैट्स भी वहां पर लिखा गया बहुत ही क्लियरली कि 3 मैच में सिर्फ 8 रेड पॉइंट्स मिले हैं उन्हें। तो ब्रजपाल सिंह गौड़ मुझे लगता है खुद ही खुद को रोक रहे हैं, अन्यथा अगर वो जाएं तो अपना एक रेड गेम दर्शा सकते हैं। Absolutely, he needs to play fearless, and this is the raider we're talking about. Harshit, Jayasuri Nagarajan very silently does his job, and he can raid from both sides. And who has he taken? Rajendra Bakar. जी हाँ, बहुत अच्छी किक, और जय सूर्या नागराजन से बेहतर मैंने 6 या 7 का हाउस में रेडर इस पूरे समर एडिशन में देखा नहीं। राधिका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बहुत ही हार्ड किक्स वहां पर लगाते हैं, कुछ अच्छे स्विफ्ट टो टचेस करते हैं, हैंड टचेस करते हैं, और इनके पास आर्मरी में सब कुछ है। बट क्या ब्रजपाल सिंह गौड़ जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और इनके बारे में जब हमने एक फन इंटरव्यू किया था इनके साथ राधिका, तो पता चला था इनके साथियों ने बताया कि बहुत ज्यादा खेलते हैं, लगभग 365 दिन कबड्डी का होते हैं, तो ये मैचेस लगभग 340 दिन खेला करते हैं राधिका, यानी कि बहुत ही फिट है, ये पता चलता है। चाहे कोई भी टूर्नामेंट हो, गांव कस्बे गली, हर टूर्नामेंट में खेलना पसंद करते हैं। और क्या कभी कभी उनका ट्रक लोड ऑफ वर्क होता है, उससे आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते राधिका? It might not be, because just a 40-minute match, Harshit, and they are used to playing such matches as well. High intensity matches are definitely here we see at Yuva Kabaddi series. That could be just a mental blockage for him. He should just play free of mind. Then he will be able to play to his potential. तो राधिका, ये जो थोड़ा सा चर्चा चल रहा है ना, क्योंकि आज हमने उसमें भी देखा ना, ग्राफिक्स में जब टीम लिस्ट आई थी राम कुमार की, वहां फोटो नहीं थी, और जो जर्सी नंबर हमें दिया गया है वो राम कुमार का जर्सी नंबर 14 है। अभी मैं देखता हूं कि क्या उनका उस जर्सी पर जर्सी नंबर 14 था, शायद नहीं था राधिका।
Nah, I think all these things will come under the disciplinary actions. Wrong name or the wrong jersey number will also count. So that's the reason there's a small delay. Everything is being checked. जी हाँ, क्योंकि राम कुमार अरुमुगम यहाँ पर नाम टीम शीट में दिया गया था और वो जर्सी नंबर 14 था और इसलिए वो कप्तान जब उनकी फोटो नहीं देखी तो मैं शायद सोचा था कि क्या ये कोई दूसरे राम कुमार है, पर जब हमें देखने मिला तो जी नहीं, ये वही राम कुमार है। तो इनका जर्सी नंबर 7 है, वो जरूर 14 लिखा गया था। इसे एक बार रेक्टिफाई करते हैं हम। शायद यही रेफरी ने पूछा वहां पर कि आपका जर्सी नंबर हमें 14 दिया गया है बट क्या आपने 7 लिखा है। तो क्या और कोई भी राम कुमार करके खिलाड़ी है राधिका पलनी की टीम में? I don't think so because no. When we look at the full team squad, there's nothing with a similar name. Talking about these kind of disciplinary things, Ayush, Harshit, just concluded the Asian Championship. There is one player called Sunil Kumar who did not get his visa on time. He just arrived to the Korean country a day late than the other team members. So he was not allowed to play, though he was there full time. यार राधिका, और कप्तान के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया था। शायद मुझे लगता है सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी उस खिलाड़ी के लिए वहां पर थी कि एज अ कैप्टन टीम इंडिया को लीड करना था। इतना पेनफुल होगा ना for his life. It would be one big lesson. It's not his mistake though, but then that will be remembered by him. And seeing the team win a gold medal and he not being a part of it, it will be such painful situation. एब्सोल्युटली राधिका, बिल्कुल करेक्ट। पर चाहिए अगर हम टॉप पोजीशन पर कौन मौजूद है तो पिछला मैच जीतकर नीलगिरी नाइट्स पांचों की पांचों जीत के साथ टॉप पर बिल्कुल मौजूद है। 28 पॉइंट्स हैं। पेरियार पैंथर्स आपको और नजर आएंगे, पर वो जीतेंगे तो भी कोई खतरा वहां पर नीलगिरी नाइट्स को अपनी टॉप पोजीशन से होगा नहीं। चंबल चैलेंजर्स पिछला मैच हारा राधिका, इससे पहले 2 टाई ऑलरेडी वो एक दूसरे के विरुद्ध खेल चुके थे, बट क्योंकि संस्कार मिश्रा नहीं खेले अच्छा और ज्यादा खेले नहीं क्योंकि शोल्डर इंजरी थी और कोच चाहते थे कि आप ज्यादा ट्राई मत करो, तो वहां पर कहीं ना कहीं चंबल चैलेंजर्स हारा इस वजह से। Absolutely, but then Sanskar Mishra is a different raider altogether now, and this raider, you name it, he has a skill. He brings in so much variation in his attack, Harish. राधिका, इतना इजी मुझे लगा। जयसूर्या नागराजन को बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेफ्ट कवर पर क्या ब्रजपाल सिंह गौड़ मौजूद थे, यहाँ पर क्या कर रहे थे रोहित बेनीवाल, शायद वो भी मेरी समझ के परे था। और प्रेम भड़ू राधिका, सर्वाइवल 1 के बाद से मुझे वो प्रेम भड़ू नजर आए ही नहीं है। कल भी हमने देखा कि कितने सारे एरर्स उन्होंने किए, क्योंकि हम प्रेम भड़ू को जानते हैं एज अ लीथल डिफेंड, एज अ पावर हाउस, बट पावर हाउस वर्सेस पावर हाउस में जयसूर्या नागराजन की पिछली बार जीत थी। Now, only what happens, we have seen this with Gautam as well, Harshit. Once you lose the momentum, you lose your confidence as well. Please come. Especially for the defense, it's a very big task to come back in the right frame of mind. Palni Tusker challenge, no bonus. Our decision, bonus point. Please review. और क्योंकि वो शायद एक डू और टाई रही थी, पलनी टस्कर्स ने तुरंत कहा कि ये बोनस नहीं है। देखते हैं कि साहिल बागड़ा ने क्या पर बोनस चुराया, क्या बोनस लाइन कट रही थी, और जयसूर्या नागराजन की आंखें कहां है राधिका, ये भी देखिए। Absolutely, he was checking it. That's the reason he went for the review. He did cross the bonus line after the landing of the rear foot. या तो साहिल बागड़ा यहाँ पर, क्योंकि वैसे ही देखिए तंगी थोड़ी सी है ना, क्योंकि पॉइंट्स वहां पर आ नहीं रहे और यहाँ पर भी अगर आपसे वो चूक हो जाए तो वो बड़ी गलती हो सकती है। सिर्फ 2 खिलाड़ी अरावली एरोज के पक्ष में रह जाएंगे। राधिका, क्या वो पक्का डू और डायरेक्ट थी? It should be, otherwise why would they review for a bonus, Harshit, at this point in time, just in 3 minutes of the match? Yeah. Yesterday as well, they have taken a review. No bonus. Review. Very early, and they had to face it big time after that. तो यही निर्णय आया है वहां पर। साहिल बागड़ा बाहर जा रहे हैं, इसका अर्थ यही था कि वो डू और टाई रेट थी। पलनी टस्कर्स के खाते में रिव्यू भी गया है। अक्षय देसाई फिर से चेक ऑन करेंगे। Review successful, no bonus point. You have written your review. रिटेन और रिव्यू, और क्या एक और पॉइंट भी पलनी टस्कर्स के खाते में जाएगा? रेडर आउट है जी, बिल्कुल रेडर आउट, 1 पॉइंट पलनी टस्कर्स। Yeah, because it's a do or die raid. He did not get a point either by bonus or a touch. He had to warm the bench for a while, and no points whatsoever. Super tackle opportunity, and we thought about Jayasuriya will play in 5 and 6. Now let's see if he will crack this defense in 2.
जो आप देखते हैं, एक तरफ चेतन चौधरी है, दूसरी तरफ अंकित जाट है। क्या अंकित जाट की डाइव आ सकती है इस कॉन्टेस्ट की? हमने वहां पर प्री शो में भी बात की थी और इस मैच की बड़ी शुरुआती क्षणों में भी बात की थी। जयसूर्य नागराजन मुझे लगता है कि एम्प्टी हैंडेड वहां पर वापस जाना चाहेंगे और सोच भी अच्छी है क्योंकि दोनों डिफेंडर्स अभी अरावली एरोज के पक्ष में है और दो डिफेंडर्स के विरुद्ध एक रेडर ज्यादा जाकर अटैक करने की कोशिश नहीं की। चाहेंगे ज्यादा एज अ रेडर उन्हें अटैक करने दे, बट पहली 2 और डायरेक्ट पलनी टस्कस की आएगी, ये तय है। Absolutely. And I think, just before this race, Jayasuriya, he was doing a similar moment just, before Ankit Jat. One more moment, maybe Ankit Jat would have gone for a tackle. या बिल्कुल आपने सही करा दिया कि वो अंकित जाट के विरुद्ध बिल्कुल सेम तरीके से जा रहे थे। इस बार क्या अंकित जाट की दोनों neck hold Harshit. Let me have a check one more time in the replay. राधिका एक्सप्लेन कीजिएगा। Yeah, look at that. The momentum was broken by, Ankit Jat. But look at the support defender who went in. That was a proper, neck hold. या तो वो कहीं न कहीं वो थोड़ा सा अपने आप को चेतन चौधरी ने बचाया है रेफरीज की आंखों से। मैंने था नेक होल्ड जिस प्रकार का था, हो सकता था ग्रीन कार्ड बड़ी जल्दी उनकी तरफ आता, बट राजेंद्र भाकर का इंक्लूजन हुआ है और सुपर टैकल के साथ अरावली एरोज की शुरुआत हुई है। अब अंकित जाट कह रहे हैं कि बल्कि सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए क्योंकि 2 और टाई रेड होगी। क्या कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है? राधिका सब्स्टिट्यूशन नहीं है। राजेंद्र भाकर 2 और टाई रेड पर गए, अभी अंदर आए थे। Absolutely, that's what, they are not in the right frame of mind. They are not even counting, what is the situation here. He's struggling to cross the box line here. And look at that, the moment he crossed the bonus line, the left cover came in with a block. Bonus Aravali Eroz, 1 point Palni देखिए Tuskers. बिल्कुल यहाँ पर वो जो अटैक्स हम देख रहे थे, यहाँ पर पलनी टस्कर्स पूरी तरह से राजेंद्र भाकर पे वो अटैक किया। बड़ा पॉइंट यहाँ पर आता हुआ पलनी टस्कर्स के पक्ष में, पर हम फिर से वही सोच रहे हैं बोनस जरूर शायद चुरा ली, मिस कर रहा है अरावली एरोज। I think the coach would also, substituted one for a raider at least. And Jayasuriya Nagarajan do not, do the similar footwork. This is a sweep out. यह एक अच्छी किक थी अंकित जाट पर। पिछली बार वहां पर आसपास फुटवर्क दिखाया था, इस बार अंकित जाट को किक किया। चेतन चौधरी वेज पर गए, बट वो थोड़ा सा कमजोर प्रयास था चेतन चौधरी का क्योंकि जयसूर्य नागराजन जैसे रेडर के अगर आप डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं करेंगे तो वो रेडर बड़ी आसानी के साथ निकल जाएंगे। अंकित जाट ने फिर भी ठीक प्रयास किया, बट चेतन से और थोड़ा सा अटैकिंग मैं असिस्ट देखना चाह रहा था। पर 10-3 राधिका रावली एरोज के रेडर्स एक भी पॉइंट नहीं और वाई ब्रजपाल सिंह गौड़ एज अ फर्स्ट रेडर नहीं खेल रहे हैं राधिका। I think he need to be given much more match pace because he is one of the top 5 raiders in the summer edition. You cannot break his confidence just like that. He is one among the top 5. That means he has the caliber to be a full-time raider. Give him that space, give him more opportunity because anyways the other raiders also have not been doing a great job. और रेडर्स देखिए वैसे बहुत अगर नहीं कर रहे हैं तो नवप्रीत नाम के एक और रेडर वहां पर मौजूद हैं आपकी टीम में जो एज सब्स्टिट्यूट बैठे हैं, तो उनका इंक्लूजन वहां पर हो सकता है। अब देखिए ब्रजपाल सिंह गौड़ खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा राधिका। यहाँ पर इन्हें वो खुद दिखाना पड़ेगा और खुद करना पड़ेगा कि मेरे अंदर वो स्किल्स है कि मैं बड़े से बड़े डिफेंस को भेद कर आ सकता हूँ। पैकिंग लगाने का प्रयास और उसके लिए थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, डेयरिंग दिखानी पड़ेगी, थोड़े से 1-2 बोनस फेक अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। Now, if you look at his approach, Harshit, he is looking for, some failed attempt from Palni Tuskers. He's not been in the attacking mode. He's just waiting for the opposite to attack him so that he escapes. और कल पलनी टस्कर्स ने यही डिफेंस में गलती संस्कार मिश्रा के विरुद्ध की थी और आज अच्छी नजर आ रही है, बट एटलीस्ट संस्कार मिश्रा वहां जा रहे थे, कभी कभार फेक बोनस का अटेम्प्ट कर रहे थे, कभी कभार बोनस चुरा कर ला रहे थे, तो वो अटैक करने पड़ेंगे। इस बार राम कुमार ने राजेंद्र भाकर के नाक के नीचे से बोनस चुरा लिया है। Exactly. What swift bonus that was, Harshit. Lovely one. And it's a do or die. Will they be able to get a first rate point here? Finally he gets one. जी हाँ, साहिल वागड़ा आखिरकार वो पहला रेड पॉइंट अरावली एरोज के लिए 8 मिनट के इंतजार के बाद आता हुआ। अजय मुथैया इस बार टैकल इनिशिएट करने गए, ये देखिए एंकल होल्ड पर गए। राधिका कब गए? जब साहिल वागड़ा ने एटलीस्ट अंदर जाकर प्रयास किया और पलनी टस्कर्स का डिफेंस पिछले कई मैचेस में एरर प्रोन रहा है राधिका। And also the Raiders partly did not do in front of the left corner. He did in between the corner and the in position. That's why the angle wasn't there for the left corner.
बिल्कुल, पर क्या परफेक्ट अटैक जय सूर्या नागराजन। ऐसा लगता है कि इन्हें एक्स्ट्रा सेकंड्स इनके पास है। कितना रूथलेस अंदाज में, कितने इजी अंदाज में यहाँ पर जाते हैं और अटैक करते हैं डिफेंडर्स को। किसे अटैक किया? ब्रजपाल सिंह गौड़ को अटैक किया, ब्रजपाल ने माना और ब्रजपाल अब इस बार बाहर जाएंगे। What a consistent player he is. You know, just small leaps and then an extension of the arm, and that's where you get the targeted points. और थोड़ा सा यहाँ पर कैजुअल भी मुझे ब्रजपाल नजर आए थे। साहिल वागड़ा होंगे इस बार। राइट कवर का अटैक, राइट कवर का अटैक, लेफ्ट कवर लोअर बॉडी पर गया। परफेक्ट कवर अटैक यहाँ पर। Yeah, this is what Palni Tuskers we know of. So they are coming back in their true colors today. Lovely frontal block and the follow-through action by the support was phenomenal. Stuart Singh in a defensive fight, he doesn't need to do much, but then the defense was not good in retrieving back on time. तो आज ये जद्दोजहद यहाँ से जारी है, बट ये जद्दोजहद पूरी तरह से पलनी के पक्ष में जा रहे। स्टुअर्ट सिंह बहुत अच्छा रश किया, अंकित जाट की तरफ गए, अच्छा अटैक किया। राधिका अरावली एरोज, हम अगर टॉप 7-8 डिफेंडर्स में देखते हैं ना, तो पेरियार अरावली के डिफेंडर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। और अरावली के तो टॉप 3 में 2 डिफेंडर्स है ना, एक प्रेम बडू भी वहां पर आपको टॉप 10 में नजर आ जाएंगे। पर फिर क्यों बार बार इनका डिफेंस इतना वीक हो रहा है? Now this is what it is, it's all about the combination, Harshit. It's just not about the defense. If the defense is not performing, it could be the reason that Raiders are not been performing as well. Once the Raiders get some point, the team would be able to defend the other team. But if the Raiders are not getting the points, then the defense will want to get those points, and in that case, they might get and do those mistakes as well. तो चलिए, रेडर्स तो पूरी तरह से यहाँ पर विपक्ष में गए। इस बार चेतन चौधरी का अटैक आया बहुत लेट, क्या शायद थोड़े से यहाँ पर प्रेम बड़ू सपोर्ट के लिए गए थे, या तो पहले सपोर्ट के लिए जाना चाहिए था, या फिर वो पूरी तरह से चेतन को बाहर जाने देना चाहिए था। It's too casually they are playing Aravali Arrows here. It's a super tackle opportunity. Just you would have cashed on that opportunity here. Just being too casual, and again, no substitution. Again, Rajendra Bakar comes in as a Raider. ये तो बड़ी मिस्टेक है। राजेश गुर्जर साहब एक खुद बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे हैं हरियाणा फ्रेंचाइजी से। हमने उन्हें फ्रेंचाइजी लीग में खेलते हुए देखा है, अभी भी स्वयं एक प्लेयर के तौर पर अच्छा करते हैं। वाई राजेंद्र भाकर सरेंडर रेड में वहां पर जा रहे हैं? क्यों नवप्रीत नहीं है राधिका, क्यों और कोई रेडर नहीं है? मुझे तो लगता है इस बार राजेंद्र भाकर ने बोनस का भी प्रयास नहीं किया। जय मुथैया दोनों थाइस पर गए, ये तो सेक्रीफाइस किया गया है राजेंद्र भाकर का। Absolutely, second all out in a row for Palni Tuskers, and that came in like 11.5 minutes of the game. And brilliant thigh hold. He was just waiting for the Raider to march into his wings. ये तो बाहों में जाना था राजेंद्र भाकर, और हम उनसे उम्मीदें भी यही लगाते हैं ना, क्योंकि वो डिफेंडर हैं। इस बार राम कुमार वहां पर होंगे, अटैक करने जाएंगे। बहुत बड़ा वहां पर गैप था राइट इन और लेफ्ट कवर, राइट कवर के बीच का, उसमें बिल्कुल आसानी के साथ राम कुमार ने बोनस चुराया। अब देखिए, राधिका इतनी बड़ी लीड पलनी टस्कर ने बना ली कि उन्हें कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। Now I'll tell you, yesterday me and Naveen has an point to discuss where why one of the Raider is standing out and one of the defender is in the chain in the middle. So that's what we say. Normally, if it's a 3-member defense, the centerman and the right cover and the left cover, if they stand in a row, the gaps would not be given, available for the opponent Raiders for the bonus. Bonus point, please. TV umpire, Aravali Arrow challenge, bonus point. Our decision, no bonus. Please review. चलिए, वैसे ही दिन अभी तक उतना बेहतर गया नहीं। क्या बोनस में वहां पर मांग की है अरावली एरोज ने, उसमें क्या दिन बेहतर जाएगा? रेफरी यहाँ पर अक्षय देसाई नजर आए हैं। यहाँ देखते हैं क्या बोनस मिला है। फिर से बोनस लाइन कट रही है राधिका, सेम शायद जो मैं पहले नजर आया था। Exactly, he did not. By the time he crossed the bonus line, the rear foot was already landed onto the mat. Review unsuccessful, no bonus point. Aravali Arrows, your use or no more use. ओके, तो यहाँ पर अरावली एरोज ने वहां पर रिव्यू भी गवा दिया है।
थोड़ा सा पूरी तरह समझ के बाहर रहा है प्रदर्शन अरावली एरोज का, जिस प्रकार से चोला वीरन्स के लिए भी सेम फेज गया था राधिका। चोला वीरन्स भी क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी शायद उनके सबके समझ के परे था। राम कुमार आएंगे राजेंद्र वाकर के नीचे, फिर से बोनस चुराने का प्रयास करेंगे, राइट कवर अटैक करने गए चेतन चौधरी, चलिए बाल बाल बचे हैं राम कुमार से यहाँ पर। Absolutely. Now, they need to have a short range, Aravali arrows. They can't kill a maximum time on the opponent court without getting a point. Just crossing the block line doesn't help at all. Do some quick raids and go back. या प्लानलेस, यहाँ पर प्लानलेस रेड। देखिए बॉक लाइन के बाहर तो एक डिफेंडर राजेंद्र भाकर ने भी पैर रखा था। साहिल बागड़ा आप रेडर हैं और पल्ली टस्कर्स का जो लेफ्ट फ्लैंक है वो कमजोर है। तमिल रसन गलतियां करते हैं। ओ कितनी आसानी के साथ स्टुअर्ट सिंह गए हैं। मुझे लगता है क्या साहिल बागड़ा को वहां पर बड़ा आसान सा टच किया है साहिल ने, उसके बाद हाँ भी किया। And now that was a do or die raid. Why aren't they alert on the mat? Just being physically present doesn't help. ये सभी पॉइंट्स रेखांकित किए जा रहे हैं कि अरावली एरोज के हुआ क्या है यहाँ पर। ये एक ऐसी जो एक स्ट्रॉन्ग टीम नजर आती थी क्यों ये ऐसे विम्ड हो गई है, अचानक से सिकुड़ जाती है ना, जैसे बिल्कुल वैसा प्रदर्शन रहा है। और अब डू और डाई रेड देखिए रोहित बेनीवाल क्या कुछ कमाल कर पाएंगे। एक लेफ्ट रेडर है, बड़ी आराम से गए हैं, यहाँ बोनस चुराने का क्या प्रयास करेंगे, टो टच करने का प्रयास करेंगे। गो एंड अटैक एटलीस्ट द लेफ्ट कवर वंस। लेफ्ट कवर पर जाकर हैंड टच का प्रयास कीजिए। क्या आप सिर्फ टू और डाई रेड में बोनस के ऊपर लगातार भरोसा जताएंगे राधिका? एक और टू और डाई रेड, किसी में भी हैंड टच का प्रयास नहीं, सिर्फ बोनस। इस बार चलिए खुशकिस्मती थी कि बोनस मिल गया। Absolutely, that is definitely not a wise, strategy in a play. But then Jayasuriya Nagaraj, look at his stance. His build is like a defender. He looks so strong, but then he is very agile as well, Harshit. The way he, breaks in between, he does not attack corner to corner. He just turns in between, gives that pause, turn and attack. He has lovely variation in his skills, Harshit. यार राधिका वेरिएशन, उनके पास जो मिश्रण है ना हर एक स्किल का वो बहुत अच्छा है और बहुत ही यहाँ पर कामली, बहुत ही डिलीजेंट लगते हैं जब ये इस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं। अब ब्रजपाल सिंह गौर देखिए राधिका अरावली एरोज के रेडर्स में वो डर है, वो अंदर जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। टच पॉइंट मुझे नहीं लगता आया है। ब्रजपाल सिंह गौर टर्निंग द पेजेस अराउंड करने की कोशिश थी, बट ब्रजपाल सिंह गौर बिल्कुल यहाँ पर इनका फॉर्म बहुत बड़े दुश्मन की तरह कार्य कर रहा है इनके लिए। It was a defensive error from Palni Tuskers, but then, look at the way, he took the wrong route to escape, Harshit. या हम बात करते हैं राइट रेडर, ऑलवेज उन्हें अपने राइट टर्न करना चाहिए लॉबी का इस्तेमाल करने के लिए। एक लेफ्ट रेडर को अपने लेफ्ट हैंड से वहां पर चूज करना चाहिए डायरेक्शन को, रूट को, क्योंकि वहां पर आप डिफेंडर नहीं पाते हैं। अगर आप इस तरह जाएंगे तो आप डिफेंडर्स का गुच्छा पाएंगे। और पलनी टस्कर्स का डिफेंस राधिका पिछले मैच में डिफेंस में पॉइंट मिले ही नहीं थे, बहुत कम पॉइंट्स मिले थे। पशुपति को दूसरे हाफ में तो सिर्फ एक सुपर टैकल के चलते पॉइंट मिला था और कुल मिलाकर उस मैच में शायद 4 या 5 टैकल पॉइंट्स पलनी टस्कर्स को मिले थे। तो अरावली एरोज के रेडर्स पलनी का जो वीक फ्लैंक है उसका आज पूरा फायदा नहीं उठा पाया, बल्कि अपनी वीकनेस को एक्सपोज किया है। लेफ्ट कवर से अटैक डैश, रोहित बेनीवाल के स्टीयरिंग लुक था, बट उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। 1 point, Palni Tuskers. Absolutely, when you talk about Palni Tuskers not performing well yesterday, but then, they are not even giving away those unsuccessful tackle points as well. They are going in for tackles only when they are confident, so that is what is required. चलिए तो वो जो प्रश्न था ना कि क्या आज पलनी टस्कर्स के लिए जीत आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और ये एक अच्छा प्रश्न था कि एलेवरसन साहब आए हैं, दिवाकरन साहब गए, तो जरूर जब वो चेंज होता है थोड़ा सा बदलाव आता है। डू और डाई रेड थी, अंकित ने कहा कि चलिए टाटा बाय बाय, गिव अवे पॉइंट्स, आप ले जाइए हमारे खाते से। Number 3 out. Stuart Singh has also been phenomenal. This is what we say, right raider turn right. That is how you execute, and lovely backtracking skills. So they're just waiting, I don't even think, the Aravali Arrows Raiders are willing to go in for raid, Harshit. Yeah, exactly, Radhika. उन्हें लग रहा है कि सिर्फ बॉक लाइन जो है वो बोनस लाइन बन चुकी है, वहाँ पर बिल्कुल बॉक लाइन के आसपास खेले, एटलीस्ट बोनस लाइन के पीछे जाने का प्रयास भी नहीं किया है। इस बार अजय मुतैया ने यहाँ पर परसूट किया है। क्या एक सुपर टैकल आ सकता है? क्योंकि अजय मुतैया वहाँ पर रेड पर थे, चेतन
चौधरी ने चलिए आखिरकार वो 5 नंबर के प्लेटफॉर्म पर बहुत सुपर देर से टैकल, गाड़ी खड़ी थी। 2 पॉइंट चलिए वो थोड़ा सा अरावली आगे एरोज। बढ़ी है, एक सुपर टैकल मिलेगा। अजय मुत्तैया का जो इस परसूट का प्लान था वो थोड़ा सा उन्हीं के ऊपर बैकफायर किया है। Exactly, the second super tackle for Aravali Arrows. You know, the stance of the frontal block was good and the back hold came in very, very strong. Look at that pain in the rib cage for the Raider. But then that was a smart move only from the from the defense to go in for the pursuit when the Raider goes blind. You know, that's a good one, but maybe you would have just gone for an empty raid. जी राजेश, क्योंकि अजय मुत्तैया ने वहां पर कोई भी टर्न ट्विस्ट करने की कोशिश की ही नहीं थी, इतनी देर में तुरंत वहां से सपोर्ट आ गया था। अब राम कुमार को क्या टैकल कर सकता है यहाँ पर? देखिए वो कोशिश करेंगे राजेंद्र बाकर की तरफ जाने का, कोशिश कर सकते हैं वो। ये देखिए क्या राजेंद्र बाकर ट्राई क्यों नहीं कर रहे हैं? You know, that's what it is. You know, he's just trying to escape from the Raider. 1 point. No, show Only that Tusker. aggressive Just number posture 77 in out. your standing, that you are in an attacking mode, not in an escaping mode. Red. सिर्फ बचने जा And रहे the way he राजेंद्र was- बाकर जैसा डिफेंडर राधिका। मैं उन्हें उनकी टैकल सिखाना चाहता हूँ। वो सुधाकर जैसे खिलाड़ी को एक ही जना रोक पाया है, वो पॉकेट डायनामो रहा है पुडुचेरी के एडिशन में। इस बार अयनाथन रंगनाथन की थोड़ी सी गलती थी, सोडे से सोलो टैकल के लिए वहां पर चले गए थे। और जो आप बात कर रहे थे वहां पर एक कवर के खिलाड़ी से कैसे मिस्टेक होती है, यहाँ पर वही गलती हुई। पुरुषोत्तमना का भी वहां पर साथ आया, तो साहिल बागड़ा ने एटलीस्ट इस बार कोशिश की हाफ वे डुबकी लगाने की राधिका। Red. Absolutely, that was way too advanced a tackle for the Palni Tuskers there. And you know, the Rajendra Bakar we're talking about, the way he sleeps on the mat, you know, half sleeping on the mat when he wants to escape from the Raider. You know, how soon will he get up if if a defense, attempts for a tackle on the other side? He should be able to be there in within second for the support. And Naveen, we could see him, he's alone today. जी हाँ, नवीन वहां बैठे हैं और शायद अरावली एरोज के परफॉर्मेंस को बहुत ही क्लोजली वहां पर एब्जॉर्ब कर रहे हैं राजेंद्र बाकर। मुझे लगता है ना राधिका, देखिए नवीन और मैंने जब से राजेंद्र बाकर के साथ इंटरव्यू किया है ना और राजेंद्र बाकर के विरुद्ध कुछ प्रश्न पूछे गए, तब से राजेंद्र बड़े वहां पर विम्ड नजर आए। बल्कि उस मैच में उन्होंने 6 टैकल पॉइंट्स प्राप्त किए थे। Exactly, I think it's the same, it's just the mind block of the defense. Just play your real game. That is what is 1 point. required. How many would Just get number this 2 out. opportunity? This is one big platform that you need to be yourself here. जी हाँ, यहाँ देखिए फिर से वो गलती हुई ना पलनी टस्कर्स के डिफेंस से, और वो होगी अगर यहाँ पर अरावली एरोज के लीडर्स प्रयास करेंगे तो वो पलनी टस्कर्स के डिफेंस से गलती होना बिल्कुल हम लाजमी समझते हैं। बट 25-11 यहाँ पर पलनी टस्कर्स के पक्ष में यहाँ पर स्कोर जाता हुआ नजर आया है। अब देखते हैं कि क्या ये 25-11 का जो स्कोर है यहाँ से बढ़ पाएंगे आगे की तरफ। 14 रेड पॉइंट्स है, 6 टैकल पॉइंट्स है और 4 जो टैकल पॉइंट्स मिले वो दोनों के दोनों सुपर टैकल्स में मिले हैं पॉइंट। ऑल आउट पॉइंट्स पलनी टस्कर्स ने 2 बार ऑल आउट पे किया है अरावली एरोज को। तो राधिका क्या अरावली एरोज से पूरी उम्मीदें करते हैं कि दूसरे हाफ में बच्चा करेंगे, बट अभी समय है फैन कोर्ट पर एक छोटा सा ब्रेक लेने का। तो मैच नंबर 83 एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। फैन कोर्ट पर दूसरा हाफ पलनी टस्कर बनाम अरावली एरोज। दोनों ही टीमें कई सारे हार के पश्चात आ रही है, बट एक और हार की तरफ अरावली एरोज को भेज दिया है पलनी टस्कर ने। पहले हाफ की कहानी में बहुत ही अच्छे 2 सुपर टैकल सिर्फ नजर आए हैं, दोनों चाहे चेतन चौधरी जिसमें भागीदारी रही थी, बट जयसूर्य नागराजन बहुत ही फिर से वर्सेटाइल परफॉर्मर विद वेरिएशंस वहां पर जा रहे हैं और अपना जंबो परफॉर्मेंस लगातार दिखला रहे हैं अपनी टीम की जीत की तरफ। साहिल बागड़ा ने थोड़ी बहुत रेड में कोशिश की है, बट वो कोशिश उतनी बेहतर नहीं रही है कि अरावली एरोज को जीत की भूमिका निभाने में प्रदर्शित कर पाए। थोड़ा सा डिफेंस अरावली एरोज को और बेहतर करना पड़ेगा और अटैकिंग होना पड़ेगा। वो जब कॉम्बिनेशन में जाते हैं, दे आर द वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन टैकल उनमें कर रखने की क्षमता है। और ब्रजपाल सिंह गौड़ को और अच्छा करना पड़ेगा। मेरे साथ कॉम्बक्स में है राधिका, आपका स्वागत है।
Thank you so much. You know, slowly they are coming back, Aravali Arrows, but then the variation is so big among the scores of both the teams. You know, initially they broke the complete confidence of Aravali Arrows here, Palni Tuskers. I'm sure this would be the day that they would be looking for that first victory in the booster round. या तो पहली विक्ट्री की तरफ पलनी टस्कर्स दौड़ चली और वो हाईवे पे पहुंच चली अब प्रकाशित मिंज जी यहाँ पर कहेंगे कि चलिए इस मुकाबले के दूसरे हाफ को एक बार फिर से शुरू किया जाए। यूट्यूब की भूमिका में अभी वो मौजूद है। अक्षय देसाई इस मुकाबले के रेफरी हैं। आइए साहिल बागड़ा, क्या कोर्ट बदलने से फॉर्चून में बदलाव हो पाएगा, क्या मानसिकता में बदलाव हो पाएगा? यही फर्क है ना मशीन और ह्यूमंस में कि स्विच ऑफ स्विच ऑन का मोड सिर्फ मशीन में होता है। साहिल बागड़ा एक बार फिर से थोड़ा सा रूट उनका रॉन्ग हो गया था। अजय मुतैया, मणिकंदन शायद वहां पर मौजूद थे। मणिकंदन आए, अटैक किया। Palni Tuskers. It's an aggressive defense there. Palni Tuskers, jersey number 5. Yellow card. Yeah, Dangerous maybe play. yellow Oh. card. Yeah, because he went very aggressive, Harshit. You know, 2 minute suspension for the defense. You know, this is okay, but the back hole that the defender came in, you know, he was quite aggressive there. So that's the reason. You know, yeah, look at that. Look at that. दिस इज द वेरी रॉन्ग स्पिरिट राधिका। और लगातार हमने देखा कि वहाँ पर किस तरह से उन्होंने, जरूर उनका इंटेंशन ये नहीं होगा, बट यहाँ पर बड़ा थोड़ा सा पेनफुल हो सकता था साहिल बागड़ा के लिए। और जरूर बहुत अच्छा येलो कार्ड वहाँ पर दिखाया गया है। पिछला मैच भी जब था पल्ली और अरावली का, वहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंटेंशन वहाँ पर थे, बट अरावली की तरफ से आज ऐसा कोई इंटेंशन नजर नहीं आया। जयसूर्य नागराजन ने तुरंत कहा कि चलिए हम हमारी गलती को मानते हैं। पर 26-11 साहिल बागड़ा वहां पर थे और मणिकंदन को शायद वहां पर येलो कार्ड मिला है 2 मिनट का सस्पेंशन के साथ। Exactly. Now in a defense of 5, Rohit Pancholi. But then this defense, you know, wow. Yet again a double thigh hold, and look at the way the support came in right in a Radar second. out. 1 point Palni जी, Tuskers. विद्युत अलाई वहां पर मौजूद है। दोनों थाइस पर गए रोहित पंचोली। जरूर मैं उनसे और स्ट्रगल थोड़ा सा देखना चाहता था वहां पर, दोनों थाइस पर। और शायद राजेश गुजर भी साहब ये कह रहे हैं कि देखिए सिर्फ खड़े खड़े वहां पर वो कोशिश कर रहे थे कि चलिए मैं मिड लाइन की तरफ चले जाऊंगा, तो वो ऐसे आपको जाने का मौका नहीं मिलेगा। एटलीस्ट आपको आपकी एस्केपिंग स्किल्स दिखानी पड़ेगी। जंप दिखाइए या फिर आप कुछ और प्रयास कीजिए, एटलीस्ट मिड लाइन की तरफ रश कीजिए, भागिए, दौड़िए, कुछ और प्रयास करने पड़ेंगे क्योंकि कबड्डी है जनाब, और ये युवा कबड्डी सीरीज का समर एडिशन है। यहाँ पर आपको कुछ भी देखिए आसानी से मिलता नहीं है ना, कुछ भी गिव अवे आपके लिए यहाँ पर है नहीं। आप जब मेहनत करेंगे तब आपको हो सकता है गिव अवे कुछ मिल जाए। Absolutely, and wow, nice, you know, dash came in. Finally, after Radar that, out. those 1 two point. super tackles, this is one brilliant tackle coming in Aravali from the Arrows. right corner. जी हाँ, इस बार कॉम्बिनेशन में गए। वहां पर अंकित चाट आए थे, अंकित चाट ने पूरी तरह से एंगल को कट किया, तो कोई भी मौका लॉबी से होते हुए निकलने के लिए स्टुअर्ट सिंह को नहीं दिया, और स्टुअर्ट सिंह को वहां पर डैश किया गया। नवप्रीत अंदर आए, जिनके बारे में हमने राधिका बहुत सारी वार्तालाप की थी। अब 4 का हाउस है, क्या अरावली एरोज पलनी टस्कर्स को ऑल आउट दे सकता है? क्या नवप्रीत की वो जो साइडवेज डुबकी है वो यहाँ पर काम आ सकती है? क्या उनकी फ्लाइज काम आ सकती है? देखना होगा। नवप्रीत एक अच्छे रेडर हैं और इनमें वो जज्बा और इनमें वो कैलिबर है कि कभी भी गेम को अकेले दम पे पलट सकते हैं। Absolutely, but the other side is such a silent killer. He knows when to attack and when to stay calm. So it's Jayasuriya Nagarajan for us. Initially gave all the momentum required for Palni Tuskers today, and when the team is, you know, just falling short, he wanted to take control of the team. जयसूर्य नागराजन राधिका, और शायद एक बार भी जयसूर्य नागराजन को बाहर नहीं कर पाई है अरावली रोज उन्हें रेड करते हुए। जयसूर्य नागराजन को सबसे पहले बाहर करना पड़ेगा अगर अरावली एरोज पलनी टस्कर्स को ऑल आउट करना चाहती है। क्या था हरिओम चौधरी, ऐसा लगा कि मणिकंदन का आते ही येलो कार्ड के पश्चात स्वागत करना चाहते थे और उनकी बाहों में जाकर टूटना चाहते थे। Now let's see. You know, right anticipation by the defender. You know, he understands what the skill the raider would use, so he had that technique to stop the raider. Brilliant one from the defender. और कोच के पास राधिका क्या वो सब्स्टिट्यूट की बेंच थी? और अगर सब्स्टिट्यूट की बेंच थी तो वहां पर आपको राजेंद्र भाकर नजर आ रहे थे, और या फिर बिल्कुल प्रेम भड़ू भी बाहर हो जाएंगे। उन जयसूर्य नागराजन, जैसा कि हमने बात ऑलरेडी की है कि बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, और प्रेम भड़ू अपने आप को पीछे नहीं धकेल पाए।
Exactly. In a defense of Palli 4, Tuskers. we always Jersey say, number it's 77 a out. tough task for a Raider. But then, having a prominent defender on the left corner as well, look at the way he extends his arm. Smart move. The acceleration is very good, Harshit, of his. Red. जी हाँ बिल्कुल ब्रेकलेस रहते हैं जयसूर्य नागराजन एक्सेलरेट बहुत अच्छा करते हैं बट राधिका इतना बड़ा टच वहाँ पर चलिए वो फिंगर टिप्स के टच होते हैं तो हमें समझ आता है प्रेम बड़ू पर इतना बड़ा टच किया गया है यानी कि प्रेम बड़ू वहाँ पर पीछे जाने के लिए बहुत उन्होंने सोची ही नहीं थी और अब नवप्रीत सिंह वहाँ पर फिर से हैं नवप्रीत सिंह साथ का हाउस है क्या इसमें कुछ कमाल कर सकते हैं राइट फ्लैंक के ऊपर से उनकी डाइव्स कभी कभी आती हैं वो फ्लाइज कभी कभी आती हैं हाई फ्लायर की तरह बट इस बार बोनस भी नहीं मिला स्टुअर्ट सिंह फिर से होंगे पिछली बार अंकित जाट ने उनका शिकार बनाया था 2 सुपर टैकल कर चुके हैं तीसरे सुपर टैकल का मौका है क्या यहाँ पर अरावली एरोज के लिए कुछ नहीं तो सुपर टैकल ही सही जा सकते हैं आज Absolutely, but then knowing the strength of Aravali Arrows, they are good at those super tackles. Stuart Singh should not go initiate anything because you have 2 more leisure raids for yourself. तो विस्तार में अगर इस मैच की बात की जाए तो फिर से आज हमने पलनी के एक्सीलेंस से ज्यादा राधिका अरावली का खराब प्रदर्शन के बारे में बात की है क्योंकि पलनी टस्कर्स अच्छी दिखी है जरूर उनके डिफेंस ने कई बार गलतियां भी की है कई बार अच्छा टैकल्स भी किया है जयसूर्य नागराजन बहुत अच्छा खेले उसमें यहाँ पर कोई भी दोहराए है नहीं इस बार एक बार पुनः देखते हैं कि क्या नवप्रीत कुछ एक्स्ट्रा ट्रायल करेंगे बट तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर मेहनत की और आज पलनी टस्कर्स की राम कुमार ने क्या अपने आप को फॉक किया है थोड़ा सा क्या और कोई खिलाड़ी अंदर आया है बट जयसूर्य नागराजन लगातार रेड लगा रहे हैं अपनी टीम के लिए Yeah, it would be an empty raid only. Yeah, he want to kill that 30 seconds raid clock because the next raid would be do or die raid. But then you can't be napping here, Aravali Arrows. He might attack any time. Just be cautious on the mat. या सुपर टैकल का मौका है जयसूर्य नागराजन जैसा कि हमने पहले प्रेडिक्ट किया था कि एक एम्प्टी रेड यहाँ पर हो सकती है 2 और टाई रेड पर यहाँ पर खेलने का प्रयास करेंगे अब देखते हैं अरावली एरोज इनकी 2 और टाई रेड है क्या इसमें नवप्रीत कुछ और एक्स्ट्रा ट्राई कर सकते हैं नवप्रीत श्रीगंगानगर के खिलाड़ी हैं राजस्थान के पंजाबी बॉर्डर के पास के गांव से काफी समय से कबड्डी खेल रहे हैं क्रिकेट भी खेला करते हैं इस बार पॉज लिया था डुबकी लगाने का प्रयास था राइट कवर का अच्छा टैकल चेन में गए थे और दोनों कवर्स के डिफेंडर्स ने आज कोई भी गलती करने की सोची ही नहीं है राधिका Absolutely, and the raider himself is not even aggressive. The left corner, look at the grip on the ankle from Ajay. Very, very tough that one, and it's a do-or-die raid. Who steps up? Jayasuriya. I'm sure this time around he will break this defense, Harshit. He will break it. क्या टच पॉइंट ले जाएंगे वो बड़ी आसानी के साथ ना अटैक करेंगे ना अटैक करवाएंगे डिफेंडर से हम क्रिकेट में कभी कभी देखते हैं कि रोहित शर्मा के पास पुल मारने के लिए अतिरिक्त समय है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस खिलाड़ी के पास ऐसा एक्स्ट्रा सेकंड लगता है बहुत अच्छा एक्सीलरेट करते हैं बट क्या इनके विरुद्ध राधिका डिफेंडर्स अपने आप को पीछे ही नहीं खींच पा रहे हैं Exactly, because that's a kind of variation he's getting in his skills, Harshit. So he's become an unpredictable player. That's how every raider need to be. You need to channelize your own skills in every single match. Try and play with the weakness of the other team. ब्रजपाल सिंह गौड़ ने भी कहा कि चलिए अच्छा डिफेंस किया है उसे अप्रिशिएट किया और तुरंत वहां पर अपने खेल में जाएंगे पहले टस्कर्स ने एक और बार ऑल आउट कर दिया है पहले हाफ में 3 बार ऑल आउट किया था शायद या फिर 2 बार किया था अब एक और बार ऑल आउट कर देंगे यहाँ पर अरावली एरोज को तो स्कोर जो है वो बहुत ही कम रहा है अजय मुत्तुए का अच्छा डबल थाई पर अटैक यहाँ पर आया और जब राधिका अर्ली मोमेंटम की हम बात करते हैं आज पलनी टस्कर्स के लिए जैसे अर्ली मोमेंटम इनके पक्ष में गया है जो डिफेंस इनका अक्सर अमूमन चूक करता था यहाँ आज उनका डिफेंस ऑन फायर खेल रहा है जयसूर्य नागराजन को बाहर बुलाना बिल्कुल सही सोच है रामकुमार को अंदर भेजा गया है जेट पशुपति को भी बुला लीजिए अंदर अब उन्हें भी करान दीजिए उनकी बेस्ट रेट्स आओ आ गए हैं राधिका जेट पशुपति भी अंदर आ गए बात करते I know he's such a swift turn and lovely escape from the lobbies. This raider, given a chance, running bonus attempt, and I think he executed a toe touch in the process. Wow, just marvelous. प्रेम बड़ू एक बार पुनः जाते हुए यहाँ पर बाहर बोनस का प्रयास किया था बिल्कुल बोनस लाइन के आगे और एक अच्छे बोनस के साथ साथ वहां पर क्या कोशिश की उन्होंने कि प्रेम बड़ू पर टो टच किया जाए मुझे लगा कि प्रेम जहाँ तो जेट पशुपति बोनस के लिए रहे थे प्रेम बड़ू का शायद पैर बीच में आ गया राधिका Exactly, he went for the running bonus attempt, but
They were too close. The defense was too close that one of them had to, touch his feet. Anyways, now this is Sahil Bagara. तो राधिका एज एक्सपर्ट डिफेंडर, क्या उसमें प्रेम बडूकी में थोड़ी सी गलती थी कि वो अपने पैर को पीछे नहीं कर पाए? Exactly. Because when a new raider comes in, or you might have seen him playing already in several matches. He is also one speedy raider who is good at bonus as well. To guard the bonus line, you need to be very cautious on that line as well. या और Radar on. चलिए 1 point, जयसूर्य नागराजन अरावली बाहर आरोप। बैठे हैं थोड़ी देर के लिए। राम कुमार इस बार चलिए एक बार रिप्ले में हम पुनः देखेंगे कि क्या क्या घटित हुआ है पिछली बार। नवप्रीत सिंह का लेफ्ट इन की तरफ से वो टैकल Time out, आया था, अरावली राइट आरोप। कवर का साथ आया देव गुज्जर, उसके पश्चात एक अच्छा पैर को खींचा नवप्रीत ने पीछे। एटलीस्ट ट्राई। राधिका मैं थोड़ा सा हाश होऊंगा शायद कहते कहते, बट काजीरंगा राइनोज में अंत में जैसा जैसा स्पार्क चाहिए था ना, जो हमें देखने को मिला, वो अरावली आरोप ऐसे खेलेगा। राजेश गुज्जर उसे भेड़ना चाहेंगे। अंकित तू एक्स्ट्रा मार, तू मारेगा, मेरे को पता है। या ओ भाई एटलीस्ट ट्राई कीजिए, खेल लो। मारिए। चाहे आप कितने पॉइंट्स के मार्जिन से हार रहे हो, एटलीस्ट डू योर बेस्ट, Exactly. ट्राई योर बेस्ट। सिर्फ एक टीम यहाँ पर बाहर होगी बूस्टर राउंड में, वो शायद 8वें पायदान की टीम होगी राधिका, और सिंध सोनिक ये भी मैच अभी तक जीती नहीं है। Exactly, same is the case with Palni Tuskers, but they had one tie, and I'm sure this will convert into a win. So they will be at lower risk than the other teams, and this time around the Radar Raider on. has been what 1 a point, Palni multiple Tuskers. layer of defense that have come in. They have worked in combination here, Harshit. जी हाँ, बहुत ही अच्छा इन कॉम्बिनेशन वहाँ पर है। और राजस्थान के बाकी दूसरे खिलाड़ी देखते हुए वहाँ पर एक तरफ अनुज सैनी नजर आ रहे थे, दूसरी तरफ वहाँ पर और भी बाकी खिलाड़ी मौजूद थे। क्या गलती अरावली अरोज कर रहा है उसे शायद समझ रहे हैं, और वो गलती पेरियार पैंथर्स नहीं दोहराना चाहेगा। पर 36-14 और राधिका चलिए, क्योंकि समय मुकाबला एक तरफा जा रहा है और हम कोशिश करेंगे लगातार आप सभी को ये मुकाबले को बताने के लिए। राधिका क्या आप कभी मायसोरो आए हैं? Yeah, I've been in 2010. It's been 13 years. I've been in Mysuru. Radar on. 1 ओह point, वाह, अरावली आरोप। इस बार चलिए अरावली अरोज के डिफेंस को भी वहां पर मोटिवेशन मिला कि कैसे वहां पर टैकल्स के लिए जा सकते हैं। अच्छा टैकल इनिशिएट फिर से किसने किया? राइट लेफ्ट इन ने वहां पर लेफ्ट इन गए शुरुआत में टैकल करने। नवप्रीत अच्छा किया कार्य, और यही जरूरी है। एटलीस्ट गो एंड ट्राई योर बेस्ट, अटैक कीजिए, एफर्ट दिखाइए। और अगले मैच की कहीं ना कहीं वहाँ पर बाकी टीम्स तैयारियां करते हुए शायद आपको नजर आ रही है। जो आने वाले जो मैचेस हैं उसमें आपको चूला वीरेंस नजर आएगी, सिंसोनिक नजर आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो मैचेस होंगे। बट राधिका आज हमने प्री शो में और भी कुछ अच्छे यहाँ पर स्टैट्स पर गए थे, और वो स्टैट्स अगर मैं शेयर करूँ आपके साथ, तो अरावली एरोज की अगर मैं रेट्स देखूँ तो उनकी 246 सक्सेसफुल रेड्स है और अनसक्सेसफुल रेड 184 है, और ये एम्प्टी रेट बहुत ज्यादा लगाती है। सबसे बड़े नंबर्स में यहाँ पर एम्प्टी रेट्स लगाती है राधिका, 212 एम्प्टी रेट इनके पक्ष में है। When you do lot many empty raids, that means you are risking in a do or die raid. 1 point, Palni Tuskers. और स्टुअर्ट सिंह जतिन पल्ली नंबर टस्कर्स 7 के आज रेडर्स में ये बात बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, बहुत ही अच्छा उन्होंने राइट हैंड साइड में टच किया है। या फ्रस्ट्रेशन मुझे राधिका नजर आया, राजेंद्र बाकर ने कुछ फेंका वहां पर, वो फ्रस्ट्रेशन नजर आए, वो फ्रस्ट्रेशन व्हाई आर यू नॉट शोइंग इन द मैट? राजेंद्र बाकर गो ट्राई, यू आर द वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर। मैं जो पहले बात कर रहा था सुधाकर, मैं अश्विन, अगर हम हमारे को प्रोड्यूसर मोहित की बात करें जो पॉन्डिचेरी एडिशन में थे, राधिका आपने भी शायद कॉम बॉक्स में साथ थी, जो उन्होंने सुधाकर पे अटैक किए, कोई और डिफेंडर काम नहीं कर पाता था अगेंस्ट, या सोलो टैकल्स अगेंस्ट दिस टॉमी सुधाकर। Exactly. Aggression Momentum is कहाँ one है? thing in sports, Harshit. Once he gains that confidence, I think he should be back in his own. But then when does he gain confidence? It should not be too late that he will be vanished from here. बट राधिका कॉन्फिडेंस घुमा क्यों? 6 टैकल पॉइंट, उसके बाद पिछले मैच आप कमेंट्री में थे, आपने वहां देखा कि क्या परिस्थितियां थी। आज भी आप कॉम बॉक्स में आज आप देख रहे हैं अरावली एरोज पर क्या परिस्थितियां हैं। पर अभी चलिए स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय है राधिका, और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की तरफ चलते हैं। और आप सभी मत भूलिएगा सीरीज को डाउनलोड करना। वो गया ही नहीं, वो रेडर कुछ करा ही नहीं, चैन का मारेगा, अब हम थोड़ी मारेगा। साहिल पूरा मैच निकल गया, तेरे को पता है कितनी 5 मिनट 6-7 मिनट बच रही होगी, एक हाथ नहीं खोला तूने पूरे मैच। क्यों क्यों डिफेंस को सेट कर रहा तू अटैक ही नहीं खोल रहा। अटैक खोलना, तेरे को पॉइंट मिलेंगे, बोनस मिलने लग रहा है, अच्छी बात है, लेकिन तू अटैक तो खोल। तेरा वो कॉर्नर के भर के मार, तेरे बैठे तो कूद जाना, उसके भर के मार तो सही।
चलिए तो राजेंद्र यहाँ पर राजेश गुजर साहब ने रिटॉर्टेड किया है, कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कहा है पलनी टस्कर्स को, और साहिल बागड़ा तुरंत यहाँ पर रेड पर भी आए हैं। कहा है कि कॉर्नर पर जाइए, एटलीस्ट ट्राई कीजिए और अटैक कीजिए, अपने हैंड्स को स्ट्रेच कीजिए। राधिका बिल्कुल सही कहना है राजेश गुजर साहब का, और हैंड स्ट्रेच करेंगे तो ये मिलेगा आपको। राइट कवर पर अटैक किया राधिका, इन द फर्स्ट टाइम यहाँ पर मुझे वो अटैक करते हुए नजर आए साहिल बागड़ा, और अयनाथन को बाहर किया उन्होंने। Absolutely, that is what is required, and lovely that coach has let him know what he's falling short of. He's executed it, and 20 points is the score difference. Harshit, it would be very very tough, and I'm sure Aravali Arrows is on -14 with the score difference. This positive score will definitely add to them. ये अरावली एरोज के पास कैलिबर है, इसीलिए हम वहां पर बात करें। जरूर बहुत आसान होता है कभी कभी कॉम्बॉक्स में बैठकर बात करना, और कभी कभी बहुत सारे दर्शक सोचते होंगे क्यों हम इनके इतने अगेंस्ट बात कर रहे हैं, बट हम सिर्फ उनके बारे में इसलिए इतना कह रहे हैं क्योंकि इनके पास वो कैलिबर है, कैप्टिवेटिंग उनके पास परफॉर्मेंस है, पाइवोटल रोल निभा सकते हैं। एक बार फिर से बहुत अच्छा कॉर्नर या अटैक आया, और वहीं पर बहुत ही मजेदार मौसम के साथ साथ राधिका मैसूरू में अश्विन बड़ा एंजॉय करते हुए, उनके पास अभिषेक वहां मौजूद थे, वो केरला से हैं। Lovely, they're having nice time on, witnessing all these players personally there. तो क्या पहले एक खिलाड़ी शायद पहले वहां पर लॉबी में चले गए थे, इसकी यहाँ पर डिमांड है। पास में अपर्णा वहां पर मौजूद है, और राधिका मैंने जब पहली बार एलिवेट टीम के साथ जुड़ा था ना, तो पहली बार मैंने जब कॉम्बॉक्स के साथ शेयर किया था तो अपर्णा थी। Oh, is it? Oh, nice. Each one point is. जी हाँ, क्योंकि लॉबी में शायद कोई खिलाड़ी चले गए थे। Session. Exactly. हरिओम, या फिर कोई बाहर चले गए, ये देखते हैं। हरिओम का यहाँ पर जी, हरिओम वहां पर पहले क्या लॉबी में चले गए राधिका। He stepped into the lobby and then he initiated the ankle hold. और राधिका जी, मैं उस इंटरेस्टिंग स्टोरी पर था जहाँ अपर्णा के साथ मैंने पहली बार वो कॉम्बॉक्स शेयर किया था, और बड़ा अच्छा वो मेरी शुरुआत जो जर्नी की हुई थी कबड्डी में, उससे पहले मैं वहाँ पर लगातार सिर्फ बड़े बड़े टूर्नामेंट जैसे कि नॉर्मल कॉर्पोरेट लेवल पे या फिर प्राइवेट लेवल पे थे। जब इनके साथ पहली जर्नी थी तो अपर्णा वहां पर पहली माय को पार्टनर थी कॉम्बॉक्स। इसी के बीच में पलनी टस्कर रिव्यू चाहता है। पलनी टस्कर चैलेंज, नो बोनस पॉइंट, आर डिसीजन, बोनस पॉइंट, प्लीज रिव्यू। तो रिव्यू राधिका मांगा गया पलनी टस्कर्स की तरफ से। यहाँ पर पहले जब उन्होंने पहले हाफ में रिव्यू मांगा था, सेम यही था। उस समय भी जयसूर्या नागराजन ने कहा था कि शायद वो बोनस नहीं है, बोनस लाइन बाद में पूरी तरह से नहीं कट रही थी। एक बार फिर से देखते हैं क्या उस समय पर उनका पैर हवा में था। राधिका, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहता है? Looks like Palni Tuskers, it's just a tricky one. Review successful, no bonus. Palni Tuskers, you have written your review. ओके, तो पलनी टस्कर्स दूसरी बार इन्होंने बोनस पर रिव्यू मांगा। पहली बार जब उन्होंने शायद शुरुआती 2 या 3 मिनट थी और पहली 2 और डायरेक्ट जो थी ना अरावली पर, उसी पे उन्होंने बोनस मांगा था। और अब यहाँ पर एक और खिलाड़ी जो है बाहर जाएंगे, शायद सब्स्टिट्यूट क्या किया गया है। अंकित जाट बाहर गए हैं, प्रदीप सिंह। अंकित जाट ने शोल्डर से थोड़ा सा हाथ लगाया था, क्या थोड़ी सी इंजरी का मैटर है, बट यहाँ पर जेट पशुपति अंदर आए हैं। पिछली बार जेट पशुपति ने रनिंग बोनस का प्रयास किया था, रनिंग बोनस में उन्हें प्रेम बडू का शिकार बनाया था। अब यहाँ पर एम्प्टी रेड के साथ वापस क्या जाने की कोशिश करेंगे, अब बोनस का प्रयास करेंगे। This is what it is, Harshit. When you go for one attack, come to the midline and then plan your next attack. That's what it is, and Pashupati has done it well. He just cleared his bonus, and the way he hopped to the midline, that was good. और राधिका जी, हम हमारे फर्स्ट एक्सपीरियंस कॉम्बॉक्स की बात करें तो आइए मैं आपसे जानता हूँ, खिलाड़ी से कमेंटेटर तक का सफर वो कैसा रहा है? कब आप किसके साथ पहली बार कॉम्बॉक्स में थी? राइट कॉर्नर से अटैक, इनकी पोजीशन से भी अटैक आया। राधिका, मुझे लगता है आपकी स्टोरी सुनने के लिए पलनी टस्कर्स भी बेकरार हैं। पलनी टस्कर्स, lovely bit of a tackle from Palni Tuskers here. Look at that, the way he went in, the moment he entered for a bonus, and the corners just bounced onto the defense. And my first commentary experience was season 3 of the Professional Kabaddi League, where we had the regional commentary. I was doing it in Telugu, and the only thing I was worried is the transition from being a player to a commentator. That's a difficult one, because normally when you sit in a gallery you say, hey, kya khel rahe re, something like this, play well. So I was like, on the mic I should not be saying something like that. That was the very cautious thing I made sure. तो राधिका, क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कभी एज अ प्लेयर आपने
फ्रॉम द कमेंट्री बॉक्स कहा कि अरे ये क्या है भाई, ऐसे थोड़ी ना डिफेंस करते हैं। यहाँ देखिए ऐसे ही डिफेंस करते हैं। एक बार फिर से मणिकंदन का आर्च अंदर आना। कल मैं और नवीन इनके बारे में बात कर रहे थे कि वाई मणिकंदन जब इतना अच्छा करते हैं तो क्यों उनका इंक्लूजन नहीं है। यहाँ पर मणिकंदन आज आपको अंदर नजर आया और बहुत अच्छा प्रदर्शन इन डिफेंस दिखा रहे हैं मणिकंदन। Yeah, I think they thought the right corner went for the initiation, but the left cover came in right on time. That was good. Yeah, you know, luckily we have that mute button. No, that was luckily we have that mute button, Harshit. Otherwise, you know, I would be thrown out of the commentary box. क्या वो नर्वसनेस के बारे में चले जानते हैं, कितनी नर्वसनेस थी, किस तरह का एटमॉस्फेयर था, कि आपने वो एंजॉय किया या नहीं किया। जिस प्रकार से यहाँ जेट पशुपति ने बहुत ही आसान सा एंजॉय किया। नवप्रीत डैश के लिए गए थे हाफ हार्टेडली, शायद ऐसा लगा छूकर निकल गए। चारों खान निश्चित कर दिया नवप्रीत को जेट पशुपति ने। Exactly. Look at that. He was escaping and he has eyes behind his head as well. The way he looked at it. Yes, the nervousness was there and is still there, Harshit, even today. You know, I think it's still there. यही वो enjoying part होता है ना, जब आप सबसे पहले कुछ करते हैं या फिर लगातार कुछ आप नया करते हैं तो बहुत ही alluring रहता है, बहुत ही alluring रहता है और आकर्षक। वहाँ पर बहुत ही आपको अच्छी अप्रोचेस नजर आती हैं। राधिका कैसी रही है फिर जर्नी, यानी कि अगर आप थर्ड सीजन की बात करते हैं प्रोफेशनल लीग की। And also, you know, it was just not about commentary, but I was also in the pre and post shows. You know, that was me facing the camera for the first time and giving the, you know, my expert advice on the, you know, matches played or the matches that would be happening. You know, that was a deadly task for me, but we have lovely producers who have given me a lot of confidence. वाओ, और मुझे तो लग रहा था यार WWE के खेल चल रहा है, देव गुलजार जो है टैप करने वाले हैं 1 2 3, कोई रेफरी आएंगे वहां पर कहेंगे। पर चलिए सुपर टैकल आज का शायद तीसरा या चौथा सुपर टैकल आया और प्रेम बड़ू के लिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आए यहाँ पर। अच्छा फेस था, फिर से थोड़ा सा रिस्की टैकल था। रिस्की टैकल के पश्चात वहां पर जरूर पलनी टस्कर्स के इस बार खिलाड़ी को बाहर जाना पड़ेगा। जी राधिका, तो वो प्री शो पोस्ट शो जो भी जिस तरह से आपने शुरुआत में किए हैं, और राधिका जरूर आपने भी शायद हमारे प्री शो पोस्ट शो देखे होंगे, क्या और हम बेहतर कर सकते हैं और कैसे आपके रिव्यूज इस पर? Harshit, the only thing I'm worried for you is you should not lose your voice by the end of the tournament. I love everything about the way you guys are doing it, but then, you know, just a cause of concern is just save your voice. फॉर्च्यून हम यही कहना चाहेंगे कि हम बचा कर रखें उस वॉइस को। राधिका, हम उस स्टेज पर और काम करने की कोशिश कर रहे हैं और एक वो प्रश्न था जिस पर आइए, क्योंकि अभी तो सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं तो मैं आपको वार्न कर देता हूं पहले ही, आप अपनी बेस्ट YKS एवर स्टार्टिंग 7 के साथ तैयार रहेगा। आने वाले बहुत जल्दी हम उस पर बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हैं, पैनल डिस्कशन। Exactly. I think I have you know, jotted down my list and sent it to Mohit as well. So let's see if he could match in any of them. प्लीज थोड़ा सा एक ही रेडर को डिस्क्लोज कर दीजिए कि एक खिलाड़ी तो है ही आपकी शुरुआत। सुधाकर बात है, और मैं भी वही गेस करने वाला था। कैन वी हैव वन डिफेंडर, क्या एक डिफेंडर के बारे में जान सकते हैं हम? गोसलिया। ओह लोकेश गोसलिया, वाह वाह राधिका, तो मजा आने वाला है जब हम उस पैनल डिस्कशन करेंगे। बस यहाँ पर ये मुकाबला समाप्त हुआ है, मजा पलनी टस्कर्स के लिए रहा है। 43 अंक उन्होंने प्राप्त किए, पहली जीत यहाँ पर आई है। अरावली एरोज 14 से 21 तक बढ़ी है। पिछले मैच में उन्होंने 14 अंक प्राप्त किए थे अपनी टीम अगेंस्ट टीम को, वहाँ पर 50 अंक दिए थे। थोड़ा सा पिछले परफॉर्मेंस के तो अनुसार अच्छा किया है, 14 से 21 गए हैं, बट ये वो कोई टीम नहीं है जो बिल्कुल बेसिक शुरुआत करी। ये वो टीम है जो अनुभव भी है, चेतन चौधरी जैसा डिफेंस है, राजेंद्र भाकर, प्रेम बड़ू, अंकित जाट, कहीं न कहीं रेडर्स ना होना मुझे लगता है राधिका डिफेंस में भी उन्हें डाउन कर रहा है। Absolutely, you know, the initial momentum what Palani Tuskers have broken the confidence of Aravali Arrows and they did not give them enough time to recover. Yeah, but आज परीक्षित जी ने बहुत अच्छा कार्य किया एज ए U2 और राधिका बहुत अच्छा लगता है। और बताऊं एक और डाटा मैं आपको कि जब हमारी लेडी ऑफिशियल वहाँ पर YouTube पर होती है ना, जब उनके बोल्ड कॉन्फिडेंस भरे निर्णय आते हैं तो लोग सोशल मीडिया भी बड़ा पसंद करते हैं। मिलियन व्यूज वहां पर जाते हैं, खासकर राखी कुमारी की रील्स पर अक्सर बहुत सारे चैनल ने डाला है, हर रील पर मिलियन व्यूज हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब लेडी एम्पावरमेंट वहां पर देखने को मिलता है। और राधिका इन एग्जीबिशन मैचेस से ही वी वांट टू यू आल्सो कि कभी आप जरूर हमें यहाँ ज्वाइन करें। When it happens in Hyderabad, I'm sure I would be able to meet you all personally, Harshit. वाह राधिका, और आप बुलाई कभी हैदराबाद, हम ऐसे ही चले आएंगे। यू आर
के बहाने के साथ ही चाहिए? Anytime, everybody from Yuva Kabaddi is most welcome. Hyderabad is a lovely place to be. And these three super tackles have been one, eye-catching moment for Aravalli Arrows. जी एक बार फिर से रेट पॉइंट्स चलिए आज डबल डिजिट्स में गए, ये अच्छी बात है, अन्यथा कल वहां पर रेट पॉइंट सिंगल डिजिट में थे। टैकल पॉइंट्स भी वहां पर डबल डिजिट में गए हैं। 20 रेट पॉइंट्स वहां पर पलनी टस्कर्स को मिले, 15 टैकल पॉइंट्स मिले। ये बहुत ही अच्छे दृश्य, 3 बार ऑल आउट किया अरावली एरोज को। ये जरूर पलनी टस्कर्स के डिफेंस को कहीं ना कहीं मार्ग प्रदर्शित करेगा और उन्हें रोबस्ट परफॉर्मेंस यानी कि मजबूत प्रदर्शन आने वाले समय के लिए वहां पर एक मोमेंटम दे गया है। राधिका, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? अब पलनी टस्कर्स जीत की पटरी पर वापस बढ़ रही है। Absolutely, they have gained a lot of confidence after this match, which is much required. Jayasuriya Nagarajan, he started off well and he knew when to stay calm. 11 raid attempts, 9 raid points, 1 super raid that killed the whole confidence of the opponent. 81% is the raid strike rate. That is phenomenal. तो चलिए एक बार फिर से बेंचमार्क्स देते हुए अपनी टीम के लिए बेंचमार्क सेट किया इस खिलाड़ी ने। जयसूर्य नागराजन 9 पॉइंट्स वहां पर आए। एस मणिकंदन सुब्रमण्य, ये डिफेंडर बहुत अच्छे हैं। कल हमने बहुत ज्यादा बात की थी इस खिलाड़ी के ऊपर क्योंकि पलनी टस्कर्स को वहां पर डिफेंस में कल पॉइंट मिले ही नहीं थे, तो आज उन्होंने बहुत अच्छी वापसी की, अपने आप को देखा क्या उन्हें बेहतर करने की आवश्यकता है और 6 टैकल पॉइंट्स, कमाल की वापसी इन्होंने की है और 100% रही है राधिका उनकी इस टैकल सक्सेस रेट आज। And the way the Palni Tuskers have moved up the chart, they were on the 7th spot. They've climbed up to the 5th spot here after just that one, and also the score difference went into a positive note. या पलनी टस्कर्स, क्या बात है। और राधिका सिर्फ एक जीत है और एक टाई है और बाकी मैचेस से एक एक पॉइंट। इससे पता चलता है कि एक एक पॉइंट भी कम से कम मैच से प्राप्त करना कितना जरूरी है। नीलगिरी नाइट्स टॉप ऑफ द टेबल मौजूद है। सिंसोनिक अभी आने वाले मैचेस में शेष बचेगा, वो खेलता हुआ आपको नजर आएगा। हम्पी हीरोज भी नजर आएगा आपको, पेरियार पैंथर्स भी नजर आएगा, चोला वीरन्स भी नजर आएगा। तो इन 4 टीमों के आज के मुकाबले शेष बचे हैं, पर ये पॉइंट टेबल बता रहे कि कैसे एक ही जीत के साथ पलनी टस्कर्स 7वें से 5वें पायदान पर आ चुकी है और अरावली एरोज अगर कहीं सिंसोनिक मुकाबले अब जीतने लगे तो उनके लिए मुश्किलात हो जाएगी। बट अगला मैच राधिका बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। हम्पी हीरोज बनाम चोला वीरन्स, देखते हैं कौन जीतता है आज की ये बड़ी भिड़ंत को। चलिए यहां पर अभी आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, मिलते हैं आप सभी के साथ पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ ही कॉम्बॉक्स में राधिका।
Finally, Palni Tuskers got their first win in the booster round. Welcome to the post-match presentation of match number 83 of Yuva Kabaddi Series Summer Edition 2023. आइए शुरुआत करते हैं इस post-match presentation के with thanking all our partners first. Our broadcast partner FanCode, fantasy partner Dream 11, physio partner Department of Sports Science, JSS College of Physiotherapy, hospitality partner Chinchal Hotel, Early Arrows और Ravel Arrows का win performance एक बार फिर से मददगार रहा था पलनी टस्कर्स के और इस मुकाबले में जीत के साथ-साथ पलनी टस्कर्स ने बताया कि they are back in the game. 43-21 is the end score. अब सीधा चलेंगे यहाँ पर प्रस्थान करते हैं अवार्ड्स की तरफ. शुरुआत करेंगे विद फर्स्ट बेस्ट रेडर ऑफ द मैच के साथ जो रहेंगे पलनी टस्कर्स के जय सूर्या नागराजन 9 पॉइंट्स और उन्होंने नींव रखी थी अपनी टीम की जीत की. And now the time for the best defender of the match और पलनी टस्कर्स के लिए इन्होंने शुरुआती 7 में आते ही वहां पर एक दमदार वापसी की और दर्शाया है अपना नाम. He is none other than S. Manikandan Subramani. 6 tackle points in his kit today. What a fabulous performance. Let's have a look. और नाउ द टाइम फॉर द कबड्डी कमाल ऑफ द मैच. तो पलनी टस्कर्स के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने आज टैकल्स में एग्जीबिशन लगाया और अपनी टीम के लिए गेम को मेक किया वो एक बार पुनः है एस मणिकंदन सुब्रमणी. और इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के लिए टैकल पॉइंट्स में एग्जीबिशन था बट रावली एरोज रीड में और बेहतर करना चाहेगा अगर उन्हें जीत की पटरी पर लौटना है. बट इतना ही यहां पर इस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन से. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस.